السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے ڈالتے ہیں ہمارے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر۔ لیکن دوستو، اپیل کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے اس چینل سے جڑے نہیں ہیں، پلیز نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اس کو ٹچ کر دیں، وہ لال سے سفید ہو جائے گا، اور اس کے سفید ہوتی بغل میں رائٹ سائڈ میں ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر نظر آئے گی، اس کو بھی ٹچ کر دیں۔ اس کے ٹچ کرنے کے بعد میں 3 آپشن آئیں گے، تو پہلا آپشن آل کا رہے گا، اس کو ٹچ کر دیں۔ اس طرح آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے، ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل جایا کرے گی۔ اور ناظرین، اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر، گوگل پے، فون پے، پے ٹی ایم نمبر تینوں دیا جاتا ہے۔ پلیز آن لائن یا بینک کے تھرو جس طرح بھی ہو سکتا ہے، آپ ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں، تاکہ اور زیادہ ہمارا یہ چینل مضبوط ہو جائے۔ ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کے بھیونڈی شہر کی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ بھیونڈی شہر میں اندرا گاندھی سب ضلع اسپتال میں وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے 2 افراد کی موت ہوئی ہے، اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف قتل کا معاملہ درج کرنے کا ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران اندرا گاندھی سب ضلع اسپتال کی جانب سے بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے پربھاگ نمبر 22 کے میں رہنے والے 2 لوگوں کی موت ہو گئی، جس میں ایک شخص کو اندرا گاندھی سب ضلع اسپتال میں داخل کرنے کے بجائے اسے تھانہ سول اسپتال بھیج دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے سول اسپتال میں علاج کے دوران ہی اس کی موت ہو گئی۔ اسی طرح ایک دوسرے شخص کو، جس کو دل کا عارضہ، ہارٹ کی بیماری تھی، اس کو پہلے اندرا گاندھی سب ضلع اسپتال میں رکھا گیا، پھر اس کے بعد میں دوسرے اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں ایک اسپتال سے دوسرا اسپتال دوڑاتے ہوئے اس کی موت ہو گئی۔ اب ان دونوں لوگوں کی موت کو لے کر کافی ہنگامہ ہو رہا ہے، اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جو ہے، ان کے خلاف قتل کا معاملہ درج کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے باندرا میں مزدور پریشان ہو کر اسٹیشن پر جمع ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے گجرات کے سورت کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی۔ اب اس وقت میری نگاہوں کے سامنے تلنگانہ حیدرآباد کی بڑی خبر ہے کہ تلنگانہ کے ضلع سنگا ریڈی میں قائم انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی حیدرآباد IIT حیدرآباد، وہاں سے یہ خبر آئی ہے کہ وہاں مہاجر مزدوروں نے کافی ہنگامہ کیا، اور ہنگامہ ایسا تھا کہ پولیس بھاگ کھڑی ہوئی۔ آپ کو بتا دیں کہ مرکز کی طرف سے جو دوسری مرتبہ لاک ڈاؤن 2 کا اعلان کیا گیا، یہ مزدوروں کے لیے کافی پریشانی کا باعث بن گیا، اور اب لوگ باقاعدہ اپنے اپنے علاقوں سے نکل پڑے ہیں، اور اپنے علاقے، اپنے گاؤں جانے کے لیے راستوں پر آپ کو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں بھی نظر آ جائے گی۔ کانگریس نے صاف طور سے کہا کہ مرکز کی غلط اور دوہری پالیسی کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں طلبہ، اسٹوڈنٹس بھی پھنس گئے ہیں، اور مزدور بھی پھنس گئے ہیں، اور اب مزدوروں کے برداشت کی حد ختم ہو گئی، کیونکہ کھانے پینے کی جتنی چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی۔ سرکار کی طرف سے انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اور یو پی بہار کے جو باہر کے مزدور ہیں، ان کو یہاں لوکل جگہ پر ان کو راشن بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور فلاحی بانٹنے، فوڈ کھانے والی بانٹنے والی تنظیمیں وہ بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور مزدوروں کے لگاتار ہم کو یہ فون آ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس پیسہ بھی ختم ہو گیا، اور اگر تھوڑا بہت پیسہ بچا ہے، اگر ہم بسکٹس لینے کے لیے بھی باہر نکلے تو پولیس بہت جانوروں کی طرح پیٹتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اب مزدوروں کے صبر کا پیمانہ ختم ہو رہا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ لاک ڈاؤن 3 کا اگر اعلان ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی بھی لاک ڈاؤن 3 کو کوئی بھی مزدور قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اپوزیشن پارٹی ابھی حکومت سے یہ کہہ رہی کہ پہلی مرتبہ تو غلطی ہو گئی، آپ نے کوئی صحیح پلان اور منصوبہ نہیں بنایا تھا، لیکن اب مزدوروں کو اپنے گھروں تک پہنچانے کے لیے کوئی منصوبہ ضرور بنائیں۔ ناظرین، ایک خوشی کی خبر اس وقت یہ آئی ہے کہ وزیر توانائی نتن راوت نے ایک اعلان کیا ہے کہ گھریلو بجلی کی میٹر ریڈنگ ابھی نہیں لی جائے گی۔ مارچ اور اپریل کے بجلی بل تاخیر سے بھرنے کی سہولت دی جائے گی۔ ریاست مہاراشٹر ریاستی سرکار نے 15 مئی تک مارچ کے بل اور 31 مئی تک اپریل مہینے کے بل کی ادائیگی کے لیے سہولت دی ہے، چھوٹ دی ہے، اس کا اعلان کیا ہے۔ آن لائن گزشتہ کل آن لائن ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر توانائی
बिजली मंत्री नितिन राउत ने कहा कि घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के मीटर रीडिंग नहीं ली जाएगी, लेकिन पिछले महीने के औसत बिल से बिजली का नया बिल तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सारिफीन से डायरेक्ट राब्ते से बचने के लिए मीटर रीडिंग, बिजली के बिलों की तकसीम, बिजली की बिल अदायगी, बिजली चोरी मुहिम और बिजली फराहमी में रुकावट वगैरह का अमल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती सरकार ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर यह फैसला लिया है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में कोरोना की तबाही जारी है। जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में कोरोना फैल रहा है, लेकिन इसी दौरान आपको बता दें कि जिस तरह महाराष्ट्र में 597 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, वो बढ़कर अब 9,915 हो गई है। 597 नए कोरोना मरीजों के साथ अब ये तादाद बढ़कर 9,915 के करीब हो गई है। लेकिन एक खुशी की खबर ये भी आई है कि प्लाज्मा थेरापी, जी हाँ, जिसको सामने लाया गया है और तबलीगी हजरात और मुसलमान बड़े पैमाने पर सामने आए हैं। और अब जिस तरीके से मुसलमानों के खून और उनके लिए वे प्लाज्मा हिंदू भाइयों की रगों में दौड़ेंगे तो नफरतों के सौदागर और नफरतों के पुजारियों को बड़ी तकलीफें होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, खुशी की यह खबर है कि प्लाज्मा थेरापी का पहला तजुर्बा कामयाब हो गया है। मुल्क की दूसरी रियासतों के मुकाबले महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। वजीर सेहत रियासत महाराष्ट्र राजेश टोपे ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दरमियान महाराष्ट्र में कोरोना के 597 नए मरीज सामने आए हैं और मुंबई समेत रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ जिलों में 32 कोरोना मरीजों की 32 कोरोना मरीजों की मौत हुई। इस तरह अब तक महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 432 के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा 205 कोरोना मरीज अस्पताल में सेहत याब होकर अपने घर भी पहुंचे हैं। नाज़रीन, लॉकडाउन के वक्त ऐसे अफसोसनाक वाकयात भी सामने आ रहे हैं कि कुछ मरीज जो वाक़तन मरीज है या कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं, हामिला औरतें, इनको ले जाने के लिए भी गाड़ियों का सही इंतजाम नहीं हो रहा है। गुज़िश्ता कल मैंने आपको मध्य प्रदेश के खरगोन की आपको खबर बताई थी। इस वक्त मेरी निगाहों के सामने फिर मुंबई की खबर आई है कि एक हामिला औरत ने एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया, क्योंकि 1.5 घंटे तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकते रहे, मगर किसी अस्पताल ने उन्हें एडमिट नहीं किया, भर्ती नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट अस्पताल जो बंद है, इस ताल्लुक से भी सरकार सख्त कदम उठाए, क्योंकि मरीजों को काफी तकलीफ हो रही है और कोरोना से ज्यादा परेशान अब लोग ये प्राइवेट अस्पतालों के बंद होने की वजह से परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक वाकया पीर 27 अप्रैल की रात को मुंब्रा में पेश आया, जब एक हामिला औरत, प्रेग्नेंट औरत जचकी की खातिर एम्बुलेंस में 1.5 घंटे तक एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक फिरती रही, मगर किसी भी अस्पताल मैनेजमेंट ने उनकी तकलीफ और दर्द को महसूस नहीं किया और उन्हें भर्ती नहीं किया। आखिर हामिला औरत ने एम्बुलेंस में एक बच्चे को जन्म दिया। इस वक्त एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने ये भी आई है जो प्रयागराज की है। जी हाँ, विकास करके, जिसे इलाहाबाद का विकास हो गया नाम बदलते ही, और उसे प्रयागराज कर दिया गया। तो वहां से खबर आई है कि प्रयागराज में मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लगाने के खिलाफ गाजीपुर के रुकने पार्लियामेंट अफजाल अंसारी के खत को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्जी की शक्ल में समाअत के लिए रजिस्टर कर लिया है, जिस पर चीफ जस्टिस की बेंच जुमेरात को समाअत करेगी। आपको बता दें, मिस्टर अंसारी ने कहा कि कोरोना वायरस वबा से मुल्क की आवाम परेशान है। इस दौरान गाजीपुर का हर शहरी लॉकडाउन पर अमल कर रहा है, लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, मगर वहां के डीएम ने जबानी आदेश दे दिया। ये जबानी आदेश के बड़े मामले चल रहे हैं। अभी मुझे फोन आया, हमारे पाचोरा, ये लोहारा का फोन आया, ऐसे ही मुझे बुल्डाना, मलकापुर वगैरह तरफ से फोन आए थे। हमारे वजीर दाखिला कहते हैं कि महाराष्ट्र में कहीं अजान पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कहीं पर IPI और पुलिस वाले अपना धाक जमाते हुए जबानी तौर पर आदेश दे रहे हैं कि अजान बंद कर दी जाए।
जबकि अबू आसिम आज़मी का भी बयान आया था कि पुलिस वालों को समझाओ कि अजान और नमाज दोनों अलग अलग है। लोग अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन अजान इसलिए दी जाती है कि नमाज का वक्त पता चले, और रमज़ान में अजान इसलिए भी देना ज़रूरी है ताकि सहरी और इफ्तार, रोज़ा खोलने और रोज़ा रखने का वक्त भी पता चले। इसलिए हमारी हुकूमत ने जो है अजान पर पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन कुछ पुलिस वाले अपनी वर्दी या अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को डराकर धमकाकर ज़बानी आदेश दे रहे हैं और उन्हें अजान देने से मना करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त नई दिल्ली से बड़ी खबर आई है। दिल्ली से बड़ी खबर आई है कि मरकज की रियासती सरकारों को मुहाजिर मजदूरों को भेजने के आदेश दिए गए हैं। तलबा को भी छूट दी गई है, लेकिन कुछ गाइडलाइन, कुछ उसूल तैयार किए गए हैं। पहले जांच करानी होगी। कोरोना पॉजिटिव अगर कोई शख्स पाया जाता है तो उसको भेजा नहीं जाएगा। मरकजी सरकार ने बुध को लॉकडाउन के 35 दिनों के बाद फंसे हुए मुहाजिर मजदूरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है खबर, पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मजदूर मुहाजिर फंसे हुए हैं या स्टूडेंट अपने घरों को जा सकते हैं, इसके लिए रियासती सरकार बसों का इंतजाम करेगी। हर स्टेट की वजारत दाखिला ने इसके लिए बुध को हिदायत जारी की है। मंत्रालय में 6 पॉइंट्स की गाइडलाइन रियासतों को भेजी गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे सरकारें, हर स्टेट की सरकार इन फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस फैसले से मुल्क भर में फंसे करीब 10 लाख से जायद मजदूर, स्टूडेंट्स, अकीदतमंदों और सैलानियों को राहत मिलेगी। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर एजुकेशन से जुड़ी हुई आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और हुक्म दे दिया कि नीट निजी अक़लियती इदारों पर भी नाफिज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को यह इल्तिजाम दिया कि मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए मुनक़िद होने वाली कौमी अहलियती दाखिला टेस्ट, जिसे नीट कहा जाता है, वो निजी और गैर इमदाद याफ्ता अक़लियती इदारों पर भी लागू होगी। जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की सदारत वाली 3 रुकनी बेंच ने कहा कि MBBS और BDS और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए निजी गैर इमदादी माइनॉरिटीज के जो इदारे हैं, जो कॉलेजेस हैं, उन पर भी नीट का इतलाक होगा, यानी उनको भी नीट लाजमी होगी। यानी इन कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट का इम्तिहान पास करना जरूरी होगा। बेंच ने कहा कि नीट का मकसद दाखिला निजाम में होने वाली खराबी और गलत रिवायत को खत्म करना है। बता दें कि नीट का इम्तिहान, नीट दाखिला टेस्ट तालीम का मेयार बरकरार रखने के लिए मुनक़िद किया जाता है ताकि इंतजाम के इस्तेहकाक की आड़ में करप्शन ना हो, बद इंतजामी ना हो। बेंच ने यह भी कहा कि नीट की वजह से अक़लियतों को दस्तूर से, आइन से मिले हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होती है। ऐसे ही एजुकेशन की एक बड़ी खबर रियासत मुंबई से यह भी आई है कि वजीर तालीम, शिक्षण मंत्री ने साफ तौर से यह कहा कि यूनिवर्सिटी के इम्तिहान लॉकडाउन के बाद जरूर होंगे। टेक्निकल व हायर एजुकेशन के वजीर उदय सामंत ने ऐलान किया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के इम्तिहानात होंगे। ताहम साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुझे नहीं लगता कि आइंदा माह मई के आखिर तक इम्तिहानात हो सकेंगे। नाज़रीन, कोरोना को लेकर मुल्क का अपडेट यह है कि कोरोना के तकरीबन 1813 नए मामले फिर सामने आए हैं और नई हलाकतें 71 और सामने आई है। मुतासरीन की तादाद इस वक्त पूरे मुल्क भारत में 33,000 यानी 33,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि 770 लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। मरने वालों की तादाद इस वक्त मुल्क में 1001 के करीब हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मामलों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और अब तक 1813 नए मामले सामने आए हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी और अफसोसनाक खबर सामने है कि जनाब अभी कोरोना वायरस ने पूरे मुल्क को ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, इतनी तबाही मचाई। लेकिन फिर एक और तबाही वाली खबर सामने आ रही है कि एक तूफान आने वाला है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है और उस तूफान का नाम अर्नब बताया जा रहा है। एक तरफ तो एक अर्नब है
रिपब्लिक टीवी वाला, इसने यहाँ पर कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक वायरस, नफरतों का वायरस फैलाया, तो वो एक अर्नब तूफान है रिपब्लिक टीवी का। लेकिन अब एक और दूसरा तूफान आ रहा है जिसको महकमा मौसमियात ने कहा कि उसका नाम भी अर्नब है, और वो तकरीबन दुनिया के 13 मुल्कों में तबाही मचाएगा। हिंदुस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 13 मुल्कों की तरफ एक खतरनाक तूफान तेज रफ्तारी के साथ बढ़ रहा है। भारत के महकमा मौसमियात की तरफ से इन सभी तूफानों के नाम जारी किए गए हैं। तूफान के इन नामों में से एक नाम अर्नब भी है, जो आने वाले दिनों में हमारे मुल्क भारत समेत दुनिया के 13 मुल्कों में तूफान ये तबाही मचाएगा। हिंदुस्तान के नाम में जिस तरीके से हिंदुस्तान में इस नाम का जो अर्नब नाम सामने आया है, तो सोशल मीडिया पर काफी कमेंट चल रहे हैं कि एक वो अर्नब है जिसने साधुओं के कत्ल के मामले को, पालघर के मामले को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की, और ये एक अर्नब तूफान है जो आने वाला है। हम सब मिलकर ऊपर वाले से दुआएं करें, अल्लाह से दुआएं करें कि मेरे मौला इस तूफान से भी और कोरोना जैसे तूफान से भी हमारे प्यारे मुल्क और पूरी दुनिया की और तेरे बंदों की हिफाजत फरमा।